correct? So without loss of generality, G is positive, and your function is continuous, and so it is bounded also. So by using that f of x, multiply both the side by g of x, then taking integration, you will see the this part, since it is positive, so I can divide with that part. This part I am dividing it, so this will be m is less than equal to integration a to b f of x gx dx divided by this. Yeah, maybe some of you may be thinking that sir यहीं पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके डिवाइड क्यों नहीं किया? कैन आई डू दैट? यहाँ पे बिकॉज इन द लास्ट तुमको ऐसा ही कुछ चाहिए ना, दैट इज लोअर बाउंड इज एम, अपर बाउंड इज, कैन आई डायरेक्टली डू दैट? कैन आई पुट इंटीग्रेशन in gs upon integration gx? We cannot do. Just check, from this part can I directly come to this part? Definitely not, no, because your function is in terms of x. If this function was a constant, then that is okay, then you are multiplying and divided by integration a to b g of x, yes, but the condition is g of x must not be 0, correct? So if it was a constant, then it is okay, but this was in terms of x. That's why we did this part. We did this thing, then we did this, and then we divided it. Is that okay? Then what next? If this part is bounded, then that means by mean value theorem, there exists a point C such that Cm, small n, capital M are the bounds of function f of x. So we know that intermediate value theorem says if there is a point between this lower bound and upper bound, then there will exist a C such that f of C will be that. That's it. Hence proved. See, I have just stated the intermediate value problem once again. Second mean value theorem, सेम ये केस में मैंने g of x को क्या, हेलो, is it okay? Hello, can you hear me now? Maybe I should speak a little bit louder. Okay, okay. इशू है तो मे भी हो सकता है बीच में हुआ, अगर आवाज़ नहीं आया तो जस्ट इन्फॉर्म मी, ओके? सो लेट मी स्टार्ट सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम का पार्ट टू. उधर पार्ट वन था, पार्ट टू. सो हियर एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम दैट इज़ मोनोटोनिक. व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक? That means it is either increasing or decreasing, correct? So here also, without loss of generality, let us assume the function f is increasing. Okay, then we know that monotonic है मतलब रीमान इंटीग्रेबल रहेगा, correct? Since your function is monotonic, we have already proved if your function is continuous, then it is Riemann integrable. If it is monotonic, then it is Riemann integrable. So in this case, this also f belong to RAB. What is RAB? That means it is Riemann integrable in this set. Okay? And monotonic increasing है तो can I say this? Can I see this? For x belong to AB. Monotonic increasing है तो this will be definitely my lower bound. That will be my upper bound. Correct? Hello? Yeah. Okay, good. So can I write the next line? Just check. F of a into b minus a is less than equal to integration a to b f of x dx, that is less than equal to f of b into b minus a. देख रहे हैं? Can I say this also? ये क्या होता है तुम्हारा? f of a into b minus a लोअर सम. ग्राफिकली सी ये हम लोगों ने प्रूफ किया था. दिस वॉज आवर फर्स्ट प्रूफ आई थिंक. इसके बाद क्या आता है? एल आता है. यहाँ पे इसके पहले क्या आता है? यू आता है. बीच में मेरा एक्चुअल इंटीग्रल. यस, ओके.
Define a function h of x that is equal to f of a into x minus a plus f of b into b minus x. This is a new function. Now we will be using our conditions. Okay, is the function h continuous? Can I say h of x is continuous? Can you tell me why? Can you tell me why this h of x is continuous? And tell me what is h of a and h of b quickly. Is it continuous? Because it is addition of two continuous function. Do you see your function? This is linear function x minus a. This is constant. This is also linear function. This is constant, correct? So this is addition of two continuous functions. So h of x is continuous. What is your h of a? H of a will be f of b into b minus a, correct? And what is your h of b? It will be f of a into b minus a. Do you see that? Yes. And इधर भी कुछ ऐसा ही था क्या? Can I say thus my integration a to b, that is f of x dx, that is lying between h of a and h of b. Can I say this? Correct? Hello. Is that clear? Now if you are having, again can I use the intermediate value property? This h is continuous on closed interval ab. Can I use intermediate value property now? It is lying between h of a and h of b. मतलब बीच में कोई वैल्यू है तो there will exist some point c. So there exists a c belong to ab such that h of c will be ये part, that is integration a to b f of x dx. But what is your h of c? h of c क्या रहेगा? एट द प्लेस ऑफ x यहाँ पे c पुट करेंगे तो क्या आएगा? f of a x माइनस, दैट इज f of a c minus a plus f of b, b minus c, I think. Yes, just check. Yeah, f of b, b minus c, correct. That is equal to integration a to b f of x dx. I think this is what we are supposed to prove, if you remember. Just check. See, all the time we are, yeah, do you see that? Integration a to b f of a c minus a c minus. यही प्रूफ करना था अपने को. All the time we are using intermediate value property. When you are having in the proof there exists something c, so make sure that you are going to use that intermediate value property. Is the proof clear? Just go back to the proof and revise once again. Take some time. So this is the question given. Your function is monotonic and you have to prove there exists some c such that integration a to b f of x dx f of a c minus a plus f of b b minus c. So from this, I should wait for some time. Yeah, hello. Yeah, can you hear me? Yeah. So from this, from the right hand side, we got that idea that ऐसा कोई एक फंक्शन मेरे को बनाना पड़ेगा जिसमें ये h of c काम करे. This should be h of c. From this we got that idea. So वही स्टार्ट किया हम लोग ने. देखो, we started with function. तुम्हारा क्या बोला है वो लोग ने? इंक्रीजिंग है तो let us consider suppose it is monotonic increasing. Monotonic बोला है, so we are considering increasing. So since it is monotonic, that means it is integrable also. And your f of e will be lying between f of x and f of y, sorry, f of e and f of b.
So integration of a to b f of x dx, that will lie between this and this. Now define h of x is this, and that's it. H of a nikalo, h of b nikalo. You see that your integration is lying between h of a and h of b. By intermediate value theorem क्या बोलता है, अगर फंक्शन का वैल्यू दो पॉइंट के बीच में लाई करे, सो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी सच दैट दिस इज ट्रू. इज द प्रूफ क्लियर? कुछ है क्या इसमें? सी जितने भी प्रूफ है, जो भी मैंने मीन वैल्यू थ्योरम से ले लो, जितने भी पार्ट हैं, हर एक पार्ट मीन वैल्यू थ्योरम 1 2 and everything, all these proofs are working on the same rule, that is intermediate value theorem. Okay, yeah, so your integration part is over, that is definite integration part is over. One more thing is remaining, that is Leibniz rule. Yeah, can you hear me everyone? Should I start? Good. This is very important for competitive entrance exam purpose also. This used to be there in all the exam, mostly one question is already there. Function of x whose value lie in this interval, then derivative of integration u of x and say v of x. लिमिट मेरा अभी देखो, पहले वो ए टू बी रहता था, अभी मेरा वेरिएबल है, एंड दिस इज एफ ऑफ टी डी टी, एंड इसका अपने को डेरिवेटिव लेना, तो दिस रूल इज कॉल्ड लिबनिज रूल. इसमें आंसर क्या आता है, सिंपल है. सो यू ऑलरेडी नो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल ईच अदर, करेक्ट, बट इधर वेरिएबल क्या है तुम्हारा, v ऑफ एक्स, या सो इसका आंसर क्या आएगा सी, इट विल बी एफ ऑफ वी ऑफ एक्स इंटू वी डैश ऑफ एक्स. मतलब क्या किया मैंने, पहले अपर लिमिट टी की जगह पे पुट किया, फिर उसका डेरिवेटिव लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट पुट किया, दैट इज एफ ऑफ यू ऑफ एक्स इंटू यू डैश ऑफ एक्स. इज दैट ओके? डिड यू अंडरस्टैंड दैट टेक्निक? दैट इज डेरिवेटिव क्या था, यू एक्स टू वी एक्स एफ ऑफ टी डी टी था, तो क्या आएगा, दैट इज f of v of x into v dash of x minus f of u of x into u dash of x. Hello. Okay. Yeah. Shall we start the proof? Proof you can directly use by second fundamental theorem. That is this. Yeah. Let me start the proof. Then we will do some problem based on this. Just see what is given to you. You are given, if you are having a function which is continuous. Okay. So अगर मैंने कैपिटल f of x डिफाइन किया, तो वो क्या रहेगा, कैपिटल f of x कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, याद है? Definite integral capital F of x is integration e to x f of x. If your f of x is continuous, then what can you say about capital F of x? क्या करता है वो, एक स्टेप बढ़ाएगा फंक्शन को, इज सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, यही था ना. या सो ये डिफरेंशियल हो जाएगा, जस्ट यू शुड से डिफरेंशियल. पहले क्या था, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस था, तो अभी जो मेरा फंक्शन रहेगा दैट इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज प्रूफ. ओके, सो दिस एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल.
and what is derivative? F dash of x will be your, that's f of x. Is that okay? अभी यही हम लोग यूज करने वाले हैं अपने उसमें, ठीक है. सो दैट मीन्स अगर मैंने ऐसा बोला, दैट वाज ए टू एक्स ना, अगर मैंने ऐसा बोला u ऑफ एक्स टू v ऑफ एक्स f ऑफ t dt, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? दैट विल बी f ऑफ v ऑफ x माइनस f ऑफ u ऑफ x. करेक्ट? बिकॉज एफ डैश, कैपिटल एफ डैश का वैल्यू स्मॉल एफ है, तो स्मॉल एफ का अगर इंटीग्रेशन लिया तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होएगा एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो पहले करते आ रहे हैं. करेक्ट? बट अपने को करना क्या है, ये जो पार्ट है ना इसका डेरिवेटिव निकालना है. तो इसका डेरिवेटिव मतलब ये टर्म का डेरिवेटिव, ये टर्म का डेरिवेटिव यू कैन सी चेन रूल लगेगा, डायरेक्टली दिख रहा है. यू फाइंड द डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड जो तुमको करना था वो मिल गया, दैट इज u ऑफ x v ऑफ x f of t dt, and right hand side is derivative of this term and this term. So can you quickly tell me what is derivative? This will be f dash of v of x into v dash of x. This is the chain rule, isn't it? Minus this will be f dash of u of x into, this is u, into u dash of x. Correct? But what is your f dash? Capital F dash is same as small f. So that means what? This is same as f of v of x into v dash of x minus this is f of u of x into u dash of. Is the proof clear? हो गया प्रूफ, 2 लाइन का प्रूफ था. यस, ये टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकते हैं. हाँ, ये टाइप के मतलब सॉल्व करना रहेगा डेफिनेटली. Is that clear everyone? Is the proof clear? See once again the proof. That is quite easy. पहले मैंने क्या किया, सिंस योर कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया, दैट इज ए टू एक्स. अगर पता है अपने को अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल. और अगर मैंने लिमिट ए और एक्स की जगह पे लिमिट मैंने यू एक्स और वी एक्स पुट किया तभी भी वही रहेगा, दैट इज एफ डैश ऑफ वी एक्स. दिस इज या एफ डैश ऑफ वी एक्स माइनस एफ डैश ऑफ वी एक्स. बट अपने को क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए. तो इसका डेरिवेटिव मतलब ये टर्म का डेरिवेटिव, इधर चेन रूल अप्लाई होएगा. डेरिवेटिव का चेन रूल पता है ना? Correct, good. Is that okay? Shall we start some problem based on this? So suppose a question is given. Let me just change the color. Make this black one. Suppose your capital F of x is given like this: x to x square root of sine t dt. You are asked to find f dash of x. Okay, is the question clear everyone? Good. So what should I do? Same rule. What is the rule? That means f dash of x means what? Derivative of f of x. But what is your f of x? That is derivative of this x to x square root of sin t dt. Is that clear? Just मैंने क्वेश्चन लिखा. Now let us see the rule. What is the rule? अगर कोई भी ये टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो क्या आएगा आंसर? फंक्शन की जगह पे एक बार वी एक्स पुट करने का इनटू उसका डेरिवेटिव माइनस फंक्शन की जगह पे यू एक्स पुट करने का उसका डेरिवेटिव. इज दैट क्लियर? याद रहेगा ये लिबनिज रूल? गुड. नाउ कैन यू टेल मी क्या आएगा ये? पूरे फंक्शन की जगह पे फंक्शन क्या है तुम्हारा? रूट ऑफ साइन टी, उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या आएगा? रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x. डायरेक्ट लिखो चलेगा. माइनस फंक्शन की जगह पे x पुट करने का दैट इज रूट ऑफ साइन एक्स
into derivative of x is 1. Is that okay? That is, this is your final answer. That is 2x root of sine of x square and minus root of sine x. Is that clear? Good. Let me give you some problem and try to do that and tell me the answer, okay? Find derivative. In TYBSC you will be learning some advanced form of this. Mostly अगर तुमको देखना है तो you can just check my last video on TYBSC में, no, last नहीं, 2-3 दिन पहले का वीडियो, 2-3 दिन पहले वाला वीडियोस mostly. Find derivative. Can you quickly do that? Just complete it and tell me. I'll give you 1 minute. Just complete it and tell me. Yes, anyone? First thing is you should start putting some function. See, मैं capital F of x बोलता हूँ इसको, that is x square, या इवन डायरेक्ट भी लिखा तभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. That is solution. That is the derivative of with respect to x. हाँ ये, this is the integration x square. This is x raised to 4 root of t square plus 2 dt. Okay, what will be this? Anyone, if you would like to help me, then you can say. Root of x raised to 4 plus 2 into 4x cube minus x raised to 8 plus 2. सी पहले तूने क्या किया, इधर x raised to 4 यहाँ पुट करना चाहिए ना, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी x raised to 8. समझ रहे हैं? पहले क्या करना था, x raised to 4 इसमें पुट करना था, फिर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, समझा क्या, क्या आना चाहिए यहाँ पे, दिस इज x raised to 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट, x raised to 4 into x raised to 4, दैट इज x raised to 8. एंड यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट. एंड व्हाट इज दिस, 2x, isn't it? गुड, हो गया. लिख दो इसको उस फॉर्म में, 4x क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू 8 प्लस 2 minus 2x and square root of x raised to 4 plus 2. Is it clear everyone? Did you got the same answer? Did you got the same answer everyone? Good. So are you able to do this type of question? फिर एग्ज़ाम में तुम्हारे इंटीग्रेशन भी सॉल्व करने को आ सकता है. नॉर्मल इंटीग्रेशन दिया है तो जस्ट 11-12 में जैसे करते हो तुम लोग, आई डोंट थिंक सो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम रहेगा तुमको. और मे भी हम लोग लेटर ऑन एक लेक्चर रख सकते हैं, इंटीग्रेशन पे ही क्वेश्चन रखेंगे. वी कैन डू दैट. एक और टाइप का क्वेश्चन आता है इस पर, फाइंड एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ, लेट मी से दो फंक्शन देता हूँ मैं, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू से सेक एक्स स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज़ लाइंग बिटवीन 0 to पाई बाय 4 को ओपन रखता हूँ. एंड लेट मी से अनदर फंक्शन, दिस इज़ 1 minus x square when on this interval -2 to 2. एवरेज वैल्यू कैसे निकालें,
Do you know? Do you remember your mean value theorem? Can you just state me? Just tell me the what? Okay. F of c equal to ना 1 upon b minus a into इंटीग्रेशन ए टू बी लिमिट कहाँ से आ गया? अच्छा लोअर लिमिट ऐसा बोल रहा था क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक्चुअली ये एफ ऑफ सी ये देखो ध्यान से देखो, दिस सीम्स टू बी एवरेज, सो एक्चुअली इसको एवरेज भी बोलते हैं एफ ऑफ सी को। जो एफ ऑफ सी है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ, आई थिंक मैं शायद उसमें लिखा है नहीं, मुझे डालना चाहिए था एफ ऑफ एक्स ऑन दिस इंटरवल। इज दैट ओके? नाउ कैन यू डू दैट? करेक्ट। पहले फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना है, मतलब बस राइट हैंड साइड में पुट करना है तुमको। कैन यू डू क्विकली? That is for the first part, average value will be integration a to b f of x dx upon b minus a. what is a to b क्या है बोलो? इंटीग्रेशन के अंदर तो सेक्स स्क्वायर देखा मेरे को, लिमिट क्या था? दैट इज 0 to पाई बाय 4 ना, सो दिस इज 0 to पाई बाय 4 डिवाइड बाय क्या आएगा? b माइनस ए, पाई बाय 4 माइनस 0। इज दैट क्लियर? यस। ओके, यू मे फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ओके, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, सो अभी इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर क्या होता है? किसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर रहता है? सो इंटीग्रेशन वो फंक्शन रहेगा। दिस शुड नॉट टेक मच टाइम, यू शुड आंसर। इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? 10x करेक्ट, तो मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा? 10x, गुड। और लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दो, दैट इज 0 to पाई बाय 4 एंड डिवाइड बाई इट इज़ पाई बाय 4। क्या आएगा आंसर? 10 पाई बाय 4 क्या होता है? अरे इतना क्यों टाइम लग रहा है? यू शुड आंसर क्विकली। 4/पाई, गुड, नाइस। इज दैट क्लियर एवरीवन? गुड। लेट मी डू सम प्रॉब्लम ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आल्सो, क्योंकि वो भी हम लोग ने किया है, उस पर भी उसका भी प्रूफ किया है, तो वी शुड डू दैट। सो समथिंग अगर -1 to 2 है एंड से एक्स क्यूब ई रेज टू सिक्स एक्स है, ई रेज टू सिक्स, और मे बी आई थिंक एक्स स्क्वायर ही देना चाहिए मेरे को। पर्पजली मैं ये प्रॉब्लम ले रहा हूँ एक्चुअली, यू विल सी। ओके, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हो तुम लोग, याद है 12th स्टैंडर्ड? यू हैव टू डिसाइड, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, दैट इज क्या आएगा? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये यू वी डी एक्स फिर से लिख देने का, मे बी अच्छे से लिखता हूँ मैं, दिस इज u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस यही टर्म पूरा फिर से इधर लिखने का, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, करेक्ट। फिर इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? कैन यू अप्लाई द फॉर्मूला हियर? यस, कैन यू डू दैट? सी 11th 12th में किया है तो मैं इस पर इतना फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। आई टेल यू अ ट्रिक, इज दैट ओके? कैन यू हियर मी? पहले डिसाइड क्या करने का, u किसको लेने का, v किसको लेने का, ये कैसे समझेगा अपने को? ट्राई टू सी द फॉर्मूला। हाँ लिएट रूल, बट वो लिएट रूल आया कैसे, वो समझा क्या तुमको? वाई दिस लिएट रूल? यस,
सी सिंपल, तुम्हें कोई रूल की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट चेक करने का दोनों फंक्शन को इन द फार्मूला ऑफ योर यू वी। सी कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव तुमको पता है या ईजिली अवेलेबल है, एंड कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन तुमको पता है या ऐसा कुछ। ठीक है, जस्ट ये देखने का, ऐसा कुछ लेने का, सो दैट डेरिवेटिव विल मेक माई फंक्शन मोर ईजियर। डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहिए उसको, समझा। सी अगर ये केस में मैंने u को, अगर मैंने ई रेज टू एक्स बोला और v को एक्स स्क्वायर बोला, तो v मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करेगा, एक्स क्यूब कर देगा। तुम्हारा क्वेश्चन और डिफिकल्ट कर रहा है, वो इजी नहीं कर रहा है, दिख रहा है। कैन यू सी। सो मतलब डेरिवेटिव क्या करता है, वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लिया तो वो 2x, मतलब वो रिड्यूस कर रहा है तुम्हारे फंक्शन को। इट इज़ मेकिंग इट ईजियर, so it is better to choose u as x square and v as e raised to x. Is it okay? Good. सॉल्विंग तुम लोग कर सकते हो। आई विल जस्ट टेल यू ए टेक्निक। जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आया है तो क्या करने का, ऊपर जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको ऊपर लिखने का, जिसका इंटीग्रेशन लेना है उसको नीचे लिखने का, ऐसे ही। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करने का फिर, हाँ अथर्व बोल। हेलो, आर यू सेइंग समथिंग? ओके, सो क्या करने का, सी जब भी ए टाइप को, ये टाइप का मतलब इसमें देखो ट्रिक क्या है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव आफ्टर सम टाइम दिस विल बिकम ज़ीरो। मतलब एक तुम्हारा पॉलिनोमियल रहना चाहिए, एक कुछ भी रहे, ठीक है। तो करने का क्या, यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस ऑल द थिंग, बिकॉज इसको सॉल्व करोगे तो तुमको 2 बार इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। कैन यू सी दैट थिंग। इधर इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x आ जाएगा। फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू सी एक्स विल बी ई रेज टू सी एक्स अपॉन ई रेज टू सिक्स एक्स अपॉन सी। तो इसका फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। कैन यू सी दैट, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होएगा ये क्वेश्चन में। दैट इज क्वाइट लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग, इजंट इट। ओके, सो ट्रिक क्या है, जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसको ऊपर लिखने का, जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन उसको नहीं, इसका डेरिवेटिव लेने का। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। इसका इंटीग्रेशन लेने का, इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज टू 6x अपॉन 6। अपॉन 6 क्यों किया, क्योंकि इंटीग्रेशन की टेक्निक है, अगर x की जगह पे ए एक्स प्लस बी हो तो यू जस्ट नीड टू डिवाइड बाय ए। इज दैट ओके। फर्स्ट स्टेप समझा सबको, एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, इसका फिर से डेरिवेटिव इधर, दैट इज 2। इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा ये, ई रेज टू 6x अपॉन 36 हो जाएगा ये, और 6 स्क्वायर लिखता हूँ, दैट इज मच बेटर। इज दैट ओके। व्हाट नेक्स्ट, इसका फिर से डेरिवेटिव दैट इज 0। इसका फिर से इंटीग्रेशन क्या आएगा ये, ई रेज टू 6x अपॉन 6 क्यूब, करेक्ट। हेलो, गुड। समझा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, नीचे का इंटीग्रेशन। अभी क्या करने का, जस्ट एरो देने का एक, इसका इससे मल्टीप्लाई करने का, इसका इससे मल्टीप्लाई करने का,